Ladies and gentlemen, to understand the Ashtak Varga system, when it comes to Navamsha, you see, first thing, can anybody tell me from whatever classes that I have given to you, what is the exact meaning of Navamsha? Okay, people say it is divisional charts, it is one of the most important, one of the most important 16 divisional charts. That's what is, and it is seen for Bhagya and marriage, spouse and Bhagya, because it is the ninth division. Ah, so that is something which is planet get here bulb from the Navamsha. So this is a very, very, this lecture that I'm going to give today, why I wrote in the group is the most important lecture, because this lecture will become the most important lecture of your life. Right? It will not be a very, very long lecture. It will be a 40 crisp, 40 minutes, 50 minutes or an hour crisp lecture, right? But I must tell you that after this lecture, when you will look at your own chart, you will understand, what is the meaning of your life. Swapnil says it's inner self, capabilities, abilities, dignities of the planets. Fine, absolutely fine. Let me tell you what exactly is the meaning for the same. Okay, now see, the first thing here is that you know in the karma theory that I had explained in the Jyotish Acharya, there are two types of karmas. Okay, when I say two types of karma settlements, I mean that you know there is this account. Okay, this account. Now this account, maybe consider this to be a box, or maybe a tumbler, or maybe you know a cash box, a big almirah, right? And there is a small box. Okay, this big box is sanchit karma. Okay, what is a sanchit karma? Net total karma. आपने अपने जीवन में जो भी अच्छा बुरा जितने भी जन्मों में किया, in whatever births that you have accumulated for yourself is known as sanchit karma. From this sanchit karma, ladies and gentlemen, you are withdrawn and you are given a karma to settle. Prarabdha. Prarabdha. You know what? This is something which is given to you. So here the balance was 1000 rupees. You have withdrawn 100 rupees. Okay, so here you're left with 900, which include good and bad both. Now this 100 which is given to you, either you can destroy this 100 rupees, or you can make 1 million, 10 million, 100 million from this 100 rupees. Actually, this prarabdh that you see here is your D1, is your राशि चार्ट, दी लग्न चार्ट जो आपके सामने है, वो आपका प्रारब्ध है. और जो आपका नेट टोटल कर्म है, नेट कर्म सारे जन्मों का अच्छा बुरा, वो आपके डिविजनल चार्ट है. उसमें से एक डिविजनल चार्ट D9 है. यही हुई ना डिग्निटी एक ग्रह की. That, is that planet giving you a backup?
सपोज दिस इज अ फादर एंड दिस इज अ सन. फादर ने बेटे को 4 पैसे दिए कि कुछ करो, जाके बड़ा करो, अपना नाम करो, मेरे पे डिपेंडेंट मत रहो, अपने कर्म काटो. बट फादर इज अनएजुकेटेड, बट फादर इज मे बी नॉन स्पिरिचुअल. व्हाई? बिकॉज ये जो फादर है आपका, बेसिकली आप उसके इंसेस्टर ही होंगे किसी ना किसी जन्म में. यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज योर कर्मा. योर फादर एंड मदर इज योर ओन कर्मा. You get father and mother not by choice but by your karma, by your prarabdha. You get a family because of your prarabdha. Suppose in your kundli Venus is bad, in the present kundli, but Venus in the Navamsha is very good. What is the meaning? The meaning is that आपने अपनी पत्नी की बहुत इज्जत की थी पिछले जन्मों में, इसलिए नवमांश में आपका शुक्र बड़ा अच्छा है. लेकिन आपने कुछ कर्म उसके साथ गलत किए थे जो खराब थे, उनको सेटल करना था, इसलिए आपकी D1 चार्ट में वीनस थोड़ा सा खराब हो गया. आपको अपॉर्चुनिटी है कि उन कर्मों को काटो, इवेंचुअली आपकी शादी बहुत अच्छी हो जाएगी, या एक शादी टूट जाएगी, दूसरी शादी जो छोटा सा कर्म आपका सेटल होगा और दूसरी शादी बहुत अच्छी हो जाएगी. क्यों? क्योंकि D9 आपका संचित कर्म है जो विष्णु जी के पास है. तभी कहते हैं ना, D9 के अंदर अगर कोई प्लैनेट बहुत अच्छा बैठा है, इट इज ब्लेसिंग ऑफ विष्णु जी, बोलते हैं ना. वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो आपका संचित कर्म है, आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, इट इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम विष्णु जी. और सपोज करो इस सिचुएशन को वाइस वर्सा करते हैं, यहां पर प्लैनेट स्पाइसिस में एक्सॉल्टेड है और यहां पर वो नीच हो गया. दैट मीन्स शादी अच्छी चल रही है, लेकिन जहां पर आपने अपने चंद्र या सूर्य की वजह से कोई गलती की, मतलब ईगो या अपने मन की वजह से, अपनी बुरी हरकतों की वजह से कोई गलती की, तो आपको पीछे कोई सपोर्ट नहीं है. ऐसी शादियों को मैं बोलता हूं कि आप अपनी शादी विल पावर पे चलाना, इच्छा शक्ति से चलाना, दया भाव से चलाना. क्योंकि जहां पर आपने बदतमीजी की, यू ऑलरेडी हैव डन सो मच बैड. आपका यहाँ पे शुक्र एक अच्छी अपॉर्चुनिटी परमात्मा ने दी है कि भाई सेटल योर कर्मा, मेक इट बेटर, योर पास्ट वाजंट गुड. दैट मीन्स यू आर वॉकिंग ऑन अ स्वॉर्ड, आप एक पतली सी धार पे चल रहे हो. So that is why when you see exalted good planets in the kundli and someone is suffering, and that someone is suffering because of sun and moon, तभी मैं कहता हूं कि कोई भी राजयोग फलित नहीं होता जब तक सूर्य उसको परमिशन नहीं देगा, जब तक उसको चंद्र परमिशन नहीं देगा. सूर्य आपकी आत्मा, चंद्र आपका मन. आप ये देखिए, लोग कहते हैं कि सर मेरा तो बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठा है और उसकी दशा आ रही है, और वो दशा आ रही है और वो दशा तो मेरी बहुत बेकार जा रही है सर, ऐसा क्यों हो रहा है सर? मैं तो सबने बोला था इतनी अच्छी दशा चलेगी. क्योंकि अगर आप उस प्लैनेट की पहले डिग्निटी देखिए D9 में, आपने पास्ट लाइफ में कुछ अच्छा नहीं किया. क्या अच्छा नहीं किया? बृहस्पति क्यों खराब है? आपने अपने गुरुओं की सेवा नहीं की, आपने बच्चों की पढ़ाई नहीं करवाई, आपने अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया, आपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया. अब आपकी दशा में प्लैनेट तो अच्छा प्लेस था, आपको अपॉर्चुनिटी थी, अभी भी आपकी वही हरकतें हैं.
तो मेरे पास कोई आएगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि सबसे पहले आप अपनी गुरुओं की सेवा शुरू करो, सबसे पहले आप गायत्री मंत्र शुरू करो, आप बच्चों को डांटो मत, बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो और बच्चों की जिंदगी बनानी शुरू करो। इमीडिएटली आपका ये 100 रुपया 1000 रुपए में या 1 लाख रुपए में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। और अगर यहाँ पे प्लेनेट खराब है, आपको खराब सर्कमस्टांसेस मिल रहे हैं, तो हमें पता है कि एक छोटी सी रेमेडी करने से, उसकी छोटी सी काउंसलिंग करने से, उसका ग्रह नवमांश में अच्छा बैठा हुआ है, इवेंचुअली उसको अच्छे रिजल्ट्स दे देगा, क्योंकि उसने प्रारब्ध में जो कर्म संचित किए हैं इन द प्रीवियस बर्थ, वो अच्छे कर्म हैं उस ग्रह के साथ जुड़े हुए, लेकिन उसके कुछ खराब कर्म बच गए थे जिनको इमीडिएटली सेटल करना था, इसीलिए आपकी कुंडली में लगन चार्ट में वो पर्टिकुलर प्लैनेट खराब बैठे। इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई ग्रह आपके लगन चार्ट में बहुत अच्छा बैठा हो और वो D9 में अच्छा ना हो, तो इंसान को सफरिंग होती है। क्यों सफरिंग होती है? क्योंकि आपका पुराने जन्मों का कर्म अच्छा नहीं रहा उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर। अगर मरकरी खराब है D9 के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने पिछले जन्मों में मरकुरी से रिलेटेड चीजें जो थी, कम्युनिकेशन, राइटिंग, बुद्धि, फाइनेंस, बुआ, मामा मामी, ऑल दिस, सिस्टर, छोटे बच्चे, उनके साथ आपने पिछले प्रारब्ध में, पिछले जन्मों में अच्छा नहीं किया है। दैट इज द डिग्निटी ऑफ D9। Of course, when we settle the prarabdha, then your score will be seen and then your navamsh will change again for the next birth. Your navmansha will change for the next birth. Plus and minus will happen. Suddenly, if this Venus was wrong and you really respected your wife, you really respected women in this birth because of your buddhi, because of Krishna mantra, because of you got a guru, because you choose that path with your mind, right? That 10% free will that you get, because of that 10% free will, you did well. Your navamsh in the next life will be a much better navamsh as compared to this life. Now you understand the meaning of navamsh. Navamsha is nothing. Navamsha is your sanchit karma, the net total karma of all the births. That is why it is a deep dissection. Why people say deep dissection, deep dissection? What is the deep? आपके कुंडली की डीप डायसेक्शन क्या है? आपके कुंडली की डीप डायसेक्शन आपके कर्मों की डीप डायसेक्शन। आप क्या करते आ रहे हैं, आपकी लीनिएज कैसी है, आप पिछले जन्मों में, आप कहते हैं ना मेरा पास्ट बताओ, मेरा पास्ट बताओ, 9th हाउस। अरे 9th हाउस की ही तो 9th ही 9वीं डिवीजन ही तो नवांशा है। That is why out of all the divisional charts, D9 chart becomes very important. The D10 chart shows how you have been working in the past. Based on your past life, आपको क्या चंक D1 में मिला है? You understand what I'm trying to tell you? See, D9 chart is one chart which is totally replica of your sanchit karma, net total karma. Then why do we talk about sanchit? But Goji, we're just going to settle prarabdha karma. See, you have to think of sanchit. Suppose the D9 chart is very good. What does that mean? That means that your life will be powerful, life will be easy, you do more karmas and get towards the moksha.
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट बैलेंस कि आपका बैकग्राउंड क्या है। सपोज करो आपने कोई काम करना है, आपसे उस काम में गलती हो गई, वो काम फेल हो गया, लेकिन आपके पिताजी का पीछे बहुत बड़ा बैकअप है, वो आपको संभाल लेंगे, वो आपको दोबारा सेटल कर लेंगे। लेकिन अगर किसी के पिताजी ही नहीं है, जो सेटल ही नहीं कर सकते, उसके लिए तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट है ना। संचित कर्मा शोज योर बैकअप। इज योर बैकअप गुड और योर बैकअप बैड? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने इस चीज को समझ लिया, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका डिविजनल चार्ट, अब जैसे एक डिविजनल चार्ट तो होता नहीं, बहुत से डिविजनल चार्ट होते हैं। मेरे को एक बात बताओ, व्हाइट कलर की लाइट इस समय आप सबके घर में जल रही है, ये व्हाइट कलर बना कैसे? व्हाइट कलर तब बनता है जब सभी 7 रंग, जो विबग्योर है, जो 7 रंग है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे बैलेंस हो जाते हैं, तो व्हाइट कलर बन जाते हैं। उसमें से अगर रेड कलर ज्यादा होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो आपको रेडिश कलर दिखेगा, ब्लू का होगा तो ब्लूइश दिखेगा, ग्रीन होगा तो ग्रीनिश कलर दिखेगा आपको। जब आपके सभी डिविजनल चार्ट शानदार होते हैं, तो व्हाइट लाइट आपका D1 चार्ट बिल्कुल चमकता हुआ होता है। ये 7 रंगों में से, ऐसे हजारों रंगों में से एक रंग निकल के आया, आपका D1। अब आप अलग अलग रंग को देखना चाहते हो कि कौन सा रंग बुरा है, किस रंग की ज्यादा इन्फ्लुएंस आपके यहाँ पे पड़ रही है, किसने, आपकी मैरिड लाइफ ने आपको झटके देने हैं जीवन में, कि आपके वर्क ने देने हैं, या दोनों ने देने हैं, आपकी हेल्थ ने, आपके पेरेंट्स ने, या आपके बच्चों ने। वो सब आपके संचित कर्म है, आपके डिविजनल चार्ट्स, सभी जन्मों का कॉम्पिटिटिव बैलेंस है वो। उसमें से थोड़ा थोड़ा उठा के आपका D1 चार्ट बना, एक लाइट बनी। लोग कहते हैं मेरा प्रोफेशन बहुत अच्छा है, आप D10 में देखिए, D10 बहुत अच्छा होगा, मेरी पर्सनल लाइफ बिल्कुल बेकार है, माई D9 इज बैड। बिकॉज आपके संचित कर्मों में से आपका जो विवाह का सिनेरियो है, उसको भुगतने का समय आ गया इस जन्म के अंदर। Absolutely. Someone is towards the moksha, someone has a good association, his or her D9 has to be very good. And he has to be careful in his life, because D1 may be bad. He has to be careful that he doesn't destroy his D9. He has to do good karmas. He has to forgive and let go things. That is why the moral of the story of all the Shastra is to forgive and forget. जस्ट माफ करते रहो, माफ करते रहो, छोड़ दो। दान दया धर्म, दान दया धर्म, दान दया धर्म, ये सब बोल रहे हैं वो सब। दान करना भी देना है, दया करना भी देना है, धर्म भी देना है। व्हेन यू डेडिकेट योरसेल्फ, इट इज धर्म। व्हेन यू डेडिकेट योर मनी टू समवन, इट इज दान। व्हेन यू डेडिकेट योर माइंड टू समवन, इट इज दया। That is why, when I say you have a really bad D1, very bad, you have really bad D9, you have extremely bad D10, अब लाइट कहां से आएगी? अब लाइट आएगी सरेंडर से। Now you surrendered, and you surrendered in front of Krishna and started saying Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Suddenly, your D1, with whatever condition, the worst of the worst combinations, right? Suddenly, you will see everything is working fine when you are when you've surrendered in front of Krishna or Shiva. That is the white light which is coming. You don't have light in your karmas. Suddenly, everything looks fine. If you are not married, still you will be very happy. No problem.
because you have surrendered to your destiny and you've started praying to Krishna and Shri Ram. To hell with marriage. You became a motivate speaker, you did BTech MBA, you don't want to be an engineer, you're helping people come out of this situation, you're happy with that. It gives you peace. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. क्योंकि जब आपका D9 अच्छा नहीं, D10 अच्छा नहीं, आपका स्कोर अच्छा नहीं, आपको तो मैं रेमेडी दे रहा हूं यहाँ पे, और हमें उसको और डीपली डायसेक्ट करना है. डीपली डायसेक्ट करके हमें क्या करना है? वी हैव टू चेक विच प्लैनेट इज कॉजिंग प्रॉब्लम इन दी संचित कर्मा. विच प्लैनेट, कैसे, कौन से आपके कर्म थे. अगर सूर्य खराब है तो पक्का आपने पिछले जन्म में गवर्नमेंट के साथ, अपने पिता के साथ, कोई ना कोई ऐसा डॉक्टर जो आपको जीवन देता हो, किसी ने आपको जीवन दान दिया, आपने उनके साथ बुरा किया है, इसलिए आपका सूर्य खराब हुआ D9 के अंदर. आपका चंद्रमा खराब हुआ, you had a bad mind, you had a very bad relations with the mother. अगर आपका D1 में चंद्रमा खराब है, कोई चक्कर नहीं है, नो प्रॉब्लम. आपकी मदर के साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, परमात्मा आपको देखेगा कि क्या आप अपने मदर की सेवा कर रहे हैं. इसीलिए जिनका चंद्रमा D1 में नीच का होता है, वो अपने मदर से बड़े अटैच्ड होते हैं. Debridation of the moon gives more attachment. अगर आपका मंगल खराब है तो आप बहुत ज्यादा अपने पिछले जन्मों में आपने लड़ाई झगड़े किए, कलेश किए, आप बहुत ज्यादा क्रूअल थे, आपकी ड्राइव्स बहुत ज्यादा थी. That means you'll have a bad Mars in the D9. You have a bad Mercury in the D9. You've misbehaved with your younger siblings, with your maternal family. You have ignored your studies, communication, writing skills. आपने बहुत खराब किया, इसलिए बुध आपका D9 में खराब है. और अगर D1 में अच्छा है तो हम ये कहते हैं ना कि D1 में अच्छा है, D9 में खराब है, तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि बैकअप नहीं है उसके पास. और अगर D1 में वो खराब है और D9 में अच्छा है, तो दैट मीन्स कि somehow you will rise from the ashes. With whatever circumstances, whatever small problems that are given to you in this life, you'll be able to come out of those situations. Because that planet has a good dignity. That planet has good karma with him from your previous many births. That is the meaning. That's how you understand your past life. If you have Jupiter in the 6th house in this life, and Jupiter is in Kendra or Trikona in a friendly sign, that means your spirituality, your respect towards your parents, children, Guru has been excellent. You have some small karma that you have to do in this birth, and if you still keep on respecting children, Guru, everyone, you will have a fantastic life. This is the meaning. If you have Venus which is bad, or if it is Venus is good in the D9, means you've respected women a lot. Your emotions were great. If Rahu is Vargottama, it is very well placed in the D9, that means you have been highly intellectual, intelligent person. And now with that intellect in the D1 chart, if the Rahu is again good, because it is Vargottama and good, you don't have to overdo your intelligence. You don't have to misuse your intelligence. You don't have to fool people, deceive people with your intelligence. No. If you do it, you will be in the vicious circle of life and death again and again, again and again. One birth goes very well, enjoy things and do bad things, and then the next birth goes in misery. You become good because you've done little bit of good in the misery, in a very misery kind of a life. In the next birth you get again good family, good husband, good children.
but again you do a lot of nonsense, you're back to the square one. And that can be seen from the D9 chart. This is the dignity. I use the word dignity. Your real self, आपके अंदर की एक चीज. That's what you understand. That is the difference between D1 and D9, ladies and gentlemen. So D9 is a very deep dissection. It's a broader view. D1 is what is outside, what is given to you. Let's see how you perform in this life. We have given you some good and bad karmas. And now let's see how you behave. Will you make this a complete bad birth, a destructive birth, or will you make this a meaningful life? Even if you don't have, suppose your Saturn is bad in the D9 chart, what will you tell to the native? Even if Saturn is exalted in the D1, he's very hardworking, he's working for 10, 12 hours. But on the same time, you will have to tell that person, hey, look, you have to really take care of the old people in life. You have to really take care of the handicap or blind people, underprivileged people, people who are dependent on you, labor class people. Never keep money of labor. Never bargain with poor people. Because it is good that you've got some good Saturn in the D1, because this time you're settling a good karma, but your backup, your past lives shows that your Saturn wasn't good. And that is the reason even this exalted Saturn is not going to give you result. This exalted Saturn is not going to give you result because in the past life, you've done a lot of nonsense. That is where the problem is. And in this life, in the D1, the Saturn is bad, it is debilitated, but with your sheer hard work, by doing remedies, of Saturn, by becoming more practical, disciplined, organized, suddenly the Saturn Dasha has given you fantastic results. That is why I keep on saying, बड़ी खराब सी दिखने वाली कुंडली बड़े अच्छे लोगों की होती है, क्योंकि आपने उनके D9 को अच्छी तरह से एनालाइज ही नहीं किया. और बड़ी अच्छी दिखने वाली D1 जैसी कुंडलियां, उनके पीछे D9, D10 खराब है, वो लोग ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं और वो 500 रुपया भी पूरा नहीं कमा पा रहे. और अगर वो कमाते भी हैं 1000 रुपया, तो उसमें से 500 की शराब पी के घर आ जाते हैं और घर आके फैमिली वालों को मारते हैं. And their kundli is very stable in the D1, and D9 is nothing. It's all debilitated and trashed and totally broken D9. So if you have a bad D9, what does that mean? You have to be super conscious in your life. You have to do what your gurus are telling you to do. And if you have a good D9, you should be confident. You will become very confident. And with that confidence, if you do good karmas, it is great. But if you do bad karmas, the suffering is going to be there. Lot of suffering is going to be there. How many of you have understood the real meaning of D9 today? How many of you have understood what exactly is D9? If you have questions, please ask, then I'll move forward. No questions? Have you understood the D9? Always saying dignity, deep dissection, trying to understand what is, D9. It is a very deep understanding. Now, tell me, what is the answer to this question for the people who say कि D9 शादी के समय active होता है? Can you answer this question? Sneha, what will you answer? इस क्वेश्चन का क्या जवाब दोगे कि D9 शादी के समय एक्टिव होता है? पहला बात तो ये कि क्वेश्चन बनता भी है. That's a very, very less, it's a very small knowledge.
when it comes to asking such questions. ओहो मेरा शनि बहुत खराब है, सारी जिंदगी सफरिंग होगी, बट शनि जो है D9 में अच्छा है, चलो कुछ तो अच्छा है. व्हाट डू यू मीन बाय कुछ तो अच्छा है? कुछ को अच्छे का मतलब है कि आपके पिछले जन्मों में आपने बड़े बुजुर्गों की बहुत सेवा की है और आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करोगे तो उनकी ब्लेसिंग से आपके काम अच्छे हो जाएंगे. अगर आपका शुक्र खराब है D9 के अंदर, इसका मतलब है कि आपको सुपर कॉन्शियस रहना है फीमेल्स के लिए, आपको उनकी इज्जत करनी. अगर आपका बृहस्पति खराब है D9 में, आपको बच्चों को बहुत प्यार देना है, आपको गुरु बुजुर्ग टीचर इन सबको बहुत रिस्पेक्ट देनी. अगर आप नहीं दे रहे हैं तो दैट मीन्स आपको कोई पीछे से ही पहले कोई सपोर्ट नहीं थी और आप आगे से फिर अपनी लाइफ को खराब करेंगे. इस प्रकार रेमेडीज दी जाती हैं, इस प्रकार काउंसलिंग की जाती है. आत्मा कारक इन D9. what is a कारक? Karak is the project manager. Atma Karak has great relevance in every divisional chart, especially the D9. Atma Karak is a energy which your soul is bringing. In the other word, I can say Atma Karak is your soul responsibility. The soul responsibility or the responsibility of your soul. Now you see how is that Atma Karak placed in the D9, which will tell me कि आपकी आत्मा एक अच्छी आत्मा है कि बुरी आत्मा है. That will tell me the color of your atma is bright, shining, or is it bad? Because that hard drive, that chip is holding the maximum karmas, that settlement. Amatya Karak is finance and money, the minister, the push that you're getting. How is that push in the past lives? Were you were able to make a good push or a bad push? You understand? आपका वो आपकी जो आत्मा को आपको दिया गया है, क्या आपके पिछले जन्मों के कर्म आपके आत्मा कारक को सपोर्ट कर रहे हैं? अगर आत्मा कारक को सपोर्ट कर रहे हैं तो आत्मा कारक की D9 में प्लेसमेंट अच्छी होगी. अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आपकी D9 में आत्मा कारक की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं होगी. दैट मीन्स यू हैव टू रियली वर्क डीप इनसाइड. योर इंटरनल लेवल पे आपको काम करने की जरूरत है इस जन्म में, और ये चीज देखकर आप अपने जीवन को समझ पाओगे. ये चीज देखकर आपको लगेगा कि ओके, ये मेरे जीवन की ये शैली रही है पिछले जन्मों में. मुझे बहुत कॉन्शियसली इन फैक्टर्स में यू हैव टू आइडेंटिफाई. सपोज इट इज मैरिज. मैरिज का कारक कौन है? वीनस. वीनस का अष्टक वर्गा देखो. ठीक है, अब ध्यान से सुनो. वीनस का अष्टक वर्गा देखो. वीनस का अष्टक वर्गा में ये देखो कि वीनस को सबसे ज्यादा मार्क्स कौन से प्लैनेट ने दिए हैं. ओके, वीनस के अष्टक वर्गा में बाकी सब ग्रहों में से सबसे ज्यादा मार्क्स वीनस के अष्टक वर्गा में वीनस को किसने दिए? मान लो सूर्य ने दिए हैं और बुध ने दिए. दो ग्रह हैं जिन्होंने 6-6 नंबर दिए हैं या 5-5 नंबर दिए हैं. सपोज अगर आप मैरिज की डिग्निटी को देखना चाहते हो, उन दोनों ग्रहों की पोजीशन नवांशा में देखो. आप समझ रहे हो फॉर्मूला? आपको करके दिखाता हूं. I'll just open the Parashara. Okay, so let me close this. Let me open, because I have some charts open for the clients. I'll make a prashna. I'll do it for today, then it doesn't create a conflict. Okay, so let me, where's my Zoom? Zoom is here. And okay,
ठीक है, नाउ दिस इज अ चार्ट, इसके अष्टक वर्गा में चलते हैं एंड वी सी द अष्टक वर्गा ऑफ वीनस. नाउ वीनस के अष्टक वर्गा के अंदर these are the scores that have been given to various rashis, okay, and this is the sum total score, okay, this is the total. यहाँ पे एक एक करके स्कोर आया 12 की 12 राशियों का, एक कॉम्पिटिटिव टोटल है. अब यहाँ पर मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा, अब इसका जो कुंडली है यहाँ पर, इसका जो 7th हाउस है वो किसको बिलोंग करता है? इसको बिलोंग करता है सन, विच इज दिस राशि. ठीक है, इसको टोटल स्कोर कितना मिला है? 3. ओके, यहाँ पर वीनस की अष्टक वर्गा में जो 5th हाउस है, मतलब जो 7th हाउस है, 5 नंबर राशि है, उसको स्कोर मिला है 3. लेकिन मुझे आप एक बात बताओ कि यहाँ पर अगर मैं ग्रहों की बात करता हूं, ठीक है, तो ग्रहों में कौन से ग्रह ने सबसे ज्यादा मार्क्स दिए हैं इसमें? वीनस ने खुद को दिए. हाईएस्ट स्कोर क्या है यहाँ पे? वीनस ने दिया और मून ने दिया. These are the two planets that have given the highest score in the Venus Ashtak Varga. Okay, in the Venus Ashtak Varga. My first responsibility is to check the position of Venus and Moon in this Kundli. Now, what about Moon in the Navamsha? Moon की क्या स्थिति है? It is debilitated in the 6th house. Yeah. And what about Venus? Venus is nice. It's in the 9th house and it is a Yog Karak in the D9. Yes? What does it signify? It signifies that although the Chandra looks very good, okay, it is giving very good score, but in the past you had a very bad mindset for your spouse because moon is debilitated in the Navamsha. Okay, so what is the area where this person should work? What is one remedy that you will give to this person for a happy married life? Tell me. Parvati Shloka. Do Parvati Puja, do Lalita Sahasranam, do Purnima fasting. You understand? Because the marriage may look very good outside. Inside, there is a mind problem. जहां पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, प्रारब्ध से आपको कोई सपोर्ट नहीं है, आपका माइंड फिर उल्टा चलना शुरू हो जाएगा. और लगन में भी देखो अमावस्या योग है कुंडली. यहाँ देखो ना, लगन कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य चंद्र है ना, अच्छा ना, अमावस्या दोष है. You understand? This is how you check. Now there's another technique. Another technique is you go to Ashtak Varga summary. Okay. Now here I'll go to another samudaya. This, okay. Here you see the 7th house. 7th house score is very less. Okay. Who is the lord of the 7th house? Sun. Sun. So we will also check the Ashtak Varga of Sun. Okay. Sun को सबसे ज्यादा स्कोर किसने दिया है? It is given by Sun, Mars and Saturn. Correct? 8, 8, 8. Let me check the position of Sun, Mars and Saturn. What is the position of Sun, Mars and Saturn here in the D9? Come on, tell me. Mars is conjunct with Ketu. Is it good placement? No. But Mars is in the Swarashi also. Mars is powerful here. Mars is powerful here. And Ketu is a similar kind of an energy, that of the Mars. On the same time, what about Sun?
Sun is in the Dvitiya bhava. It's In okay. the Rashi of the Mitra. It's in the Yeah. Mitra. And what about Saturn? Saturn is in the Kendra, but again, Saturn is in the Mitra Rashi again. Yes? Yeah. So what? But it is retrograde. So retrograde means any planet which is retrograde means if it is good, it is going to impact heavily. If it is bad, it is going to impact heavily. अगर अच्छा है तो बहुत जबरदस्त तरीके से अच्छा होगा सैटर्न, और अगर बुरा है तो बुरा होगा. अब फोर्थ हाउस है, चतुर्थ भाव है. आइडली अगर मैं तीनों ग्रहों की पोजीशन देखता हूं, सन, सैटर्न एंड मार्स, इट इज नॉट बैड. So what am I supposed to tell this person? That look, the circumstances of your marriage is not bad. You need to control your moon. आप अपने चंद्रमा को, मन को ये रखिए, ठीक रखिए. और आपके शनि वक्र हैं. शनि की पोजीशन आपके लगन कुंडली में भी अच्छी है. द्वादश भाव के शनि बुरे नहीं होते हैं. It is in the विपरीत राजयोगा स्थिति. And शनि is also your आत्मा कारक. सो आप अपने घर में शादी के बाद बड़े बुजुर्गों की इज्जत करें, सम्मान करें, हेल्प करें, हार्डवर्क करें अपनी लाइफ में. आपकी लाइफ में चीजें ठीक होंगी. बट टेक केयर ऑफ योर टेम्परामेंट, बिकॉज मंगल एकादश भाव में है और नवमांश में मंगल एक मारक ग्रह है आपकी कुंडली में. क्योंकि नवमांश कुंडली को हम एक इंडिविजुअल कुंडली की तरह देखते हैं. ये आपके संचित कर्मों की कुंडली है. दिस इज द कुंडली ऑफ योर संचित कर्मा. जस्ट simply try and understand Navvansh here. Now look at this Navvansh. Now look at this kundi. What planets are good, what planets are bad? Suppose इसकी मैरिज में, ये मैंने नववांश में यहां लेकर आ गया, अगर मैरिज में मरकुरी की कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होती और मरकुरी नववांश में नीच का दग्ध राशि के ऊपर बैठा है, क्या होता? That means the marriage looks good outside. Internally, his cousins, intelligence, communication would have really affected the marriage. Because पीछे से कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है. इसके पिछले जन्मों में कर्म अच्छे नहीं थे मरकुरी से रिलेटेड. Did you get the point what I'm trying to tell you? Yes, no, maybe. How do you check? See, for marriage, what will you check? The Ashtak Varga of the seventh house Lord and Venus. What about, you want to understand how is the Ashtak Varga behaving in the profession? Profession का natural significator कौन है? Saturn. Okay. और इस कुंडली का 10th लॉर्ड हमें देखना पड़ेगा. इस कुंडली में 10th लॉर्ड जो है, आई थिंक इट इज बृहस्पति. इट इज मार्स. इट इज मार्स. दिस इज द बर्थ चार्ट. अब आपको मार्स की अष्टक वर्गा में जाना है और मार्स की अष्टक वर्गा में जाके देखना है किन प्लैनेट्स ने हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन की है. उन प्लैनेट्स का नवमांश में अच्छा प्लेस होना बहुत जरूरी है. अगर वो नवमांश में अच्छे प्लेस्ड हैं तो इनिशियल ऑड्स के बाद आपका प्रोफेशन अच्छा हो जाएगा. लेकिन अगर उनकी पोजीशन नवमांश में खराब है तो आपकी जिंदगी में स्ट्रगल रहने वाली है प्रोफेशन को लेकर. यू हैव टू बी रियली 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 कॉन्शियस. यू हैव टू रियली डू द रेमेडीज. हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग? It needs lot of practice. It is a very advanced level of Jyotisha. It is an advanced level. Until and unless you don't practice on several charts and you have so many questions, you find answers yourself. See, again, Tattva of Sun and Moon is basically defining the power, the strength of a planet. Simple. If it is in the positive tattva, it is good.
If it is in the relevant tattva, it is good. For an example, अगर आप सन को देखें तो सन, सूर्य जो है वो कौन से तत्वों में अच्छा काम करता है? अग्नि तत्व में अच्छा काम करता है, हाँ करता है। और सूर्य जल तत्व में भी अच्छा काम करता है, ये भी याद रखिएगा। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से ऐसे तत्व हैं जहां पे सूर्य इतना अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि तत्व राशि से आता है, सीधी सी बात है, तत्व राशि से आता है। तो राशि मित्र है कि नहीं है वो तत्व को डिफाइन कर देगी। और अगर वो मित्र राशि में है तो स्ट्रेंथ है, अगर वो मित्र राशि में नहीं है तो वो स्ट्रेंथ नहीं है। वो एक कॉन्फ्लिक्ट है, वो ब्लास्ट है, वो एक टेम्परेरी एनिमिटी है। देखो, एक इंसान की बड़ी फॉर्म्स होती हैं, जैसे मैं पिता भी हूं, गुरु भी हूं, हस्बैंड भी हूं, बेटा भी हूं, बाप भी हूं, दोस्त भी हूं, लेकिन मेरी कहीं पे एनिमिटी हो सकती है और कहीं पे बहुत प्यार हो सकता है। कहीं पे मैं कमांडिंग हो सकता हूं और कहीं पे मैं बिल्कुल मेलो डाउन हो सकता हूं माँ के सामने, गुरु के सामने। मैं गुरु भी हूं और स्टूडेंट भी हूं। मैं तो हूं सेम पर्सन ही, लेकिन आपके कर्म, आपके तत्व मुझे उस तरह का रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट हूं, लेकिन माँ बाप और गुरु के साथ पोलाइट हूं तो वही सेम। सो जो तत्व हैं वो राशियों के अंदर आपको ये बताते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग रहने वाला एक प्लैनेट मुश्किल में है, उसके लिए चीजें पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैं अपनी मदर के साथ बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन करके निकलूं, हो सकता है मेरा बच्चा ऊपर जाके मुझे तंग करे अपने रूम में, बोले मेरे को ये नहीं करना, वो नहीं करना, मुझे ये खाना, मैं उसको डांटूं। जस्ट माई पोजिशन हैज चेंज्ड फ्रॉम वन रूम टू अनदर रूम, at same person is behaving in a very different fashion in a different tattva and a different fashion in a different tattva. And you have to study D9 as an individual chart, because D9 tells you कि आपके प्रारब्ध के पिछले जन्मों का कैसा सपोर्ट सिस्टम रहा है, आपने क्या अच्छे बुरे कर्म किए जिसकी वजह से आपका एक प्लैनेट D9 में अच्छी पोजीशन पे है और जो D1 के अंदर है वो एक बुरी पोजीशन में है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि D9 में जो प्लैनेट्स की एलोकेशन है वो विष्णु जी उसके साक्षी हैं। और अगर D9 में आपके प्लैनेटरी पोजीशंस अच्छी हैं और D1 में खराब हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, इवेंचुअली यू विल कम आउट ऑफ इट। बट अगर वाइस वर्सा है, D1 बहुत अच्छा दिखता है और D9 खराब है, तो आप एक पतली सी तलवार की धार पे चल रहे हैं। जहां पर आप डोले, जहां पर अपने डिसिप्लिन और माइंडसेट को खराब किया, वहां पर आपको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि आपके पास कोई बैकअप नहीं है। इमेजिन करो आप बिजनेस कर रहे हो विदाउट दी बैकअप। आप रोज कमाते हो, उसी में से थोड़ा इन्वेस्ट करते हो, फिर आप अपना चला रहे हो, उस बिजनेस करने का मजा आएगा? अगर आपके पास पैसे पड़े हो, आपके पास फाइनेंस हो और फिर आप बिजनेस करते हो, तो आपको सर्कल में प्रॉब्लम नहीं है, आप टेंशन फ्री होके काम कर सकते हो। जी शशांक जी। गुरुजी, इन द कुंडली दैट यू आर डिस्कसिंग, तो मार्स आपने बोला कि D9 में अच्छा है, राइट? लेकिन मार्स इज तो योग कारकता और मारकता देखते हैं कि नहीं D9 में? बिल्कुल देखते हैं। देखो, D9 में हम योग कारक मारक देखेंगे, नेचुरल बेनिफिक जो है मेलेफिक्स देखेंगे, ठीक है, वो कौन सी पोजीशन में बैठा है, राइट, ये भी देखेंगे। हम D9 के अंदर ट्रांजिट्स, D9 के अंदर दृष्टियां, सब कुछ देखते हैं। जैसे जब मैंने बात कही कि D9 को आपने एज ए इंडिविजुअल चार्ट देखना है, जैसे आप D1 को देखते हो। तो जब आपने मार्स की पोजीशन अच्छी बोली, तो मैंने मार्स की पोजीशन को D9 के अंदर क्यों अच्छा बोला, उसका एक रीजन था कि 11th हाउस में मंगल स्व राशि का बैठा है, राइट, पावरफुल है, राइट। छठे भाव का स्वामी होके एकादश में बैठा है, तो रोग, शोक, कर्जा, ऋण, बीमारी, शत्रु, ये सारी चीजें पिछले जन्म में सोसाइटी के साथ इस बंदे ने की है, इसलिए मंगल
वहां पर जाके बैठा है, राइट। मैं उसके प्रोफेशन के लिए देख रहा हूँ। प्रोफेशन के लिए अगर मैं मंगल को इसके D1 चार्ट में दिखाता हूँ आपको चार्ट, अगर मैं इसके D1 चार्ट में भी देखूं तो यहाँ पर जो मंगल है वो फिर से क्या है, मंगल एक न्यूट्रल प्लैनेट है, 3rd और 10th लॉर्ड है और 4th हाउस में बैठा है, राइट। चतुर्थ भाव मंगल के लिए कोई खास अच्छा भाव नहीं होता, राइट। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, चौथे भाव का मंगल मैंने अपनी लाइफ में अच्छा नहीं देखा, अच्छे रिजल्ट देते हुए नहीं देखा। अब ये बेकार है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पे मंगल मारक ग्रह है, लेकिन स्व राशि का बैठा है। स्व राशि का बैठे होने के कारण एक चीज अच्छी है कि मंगल कंफर्टेबल है, राइट। अगर मान लीजिए कि वो मारक होता और वो अनकंफर्टेबल होता, राइट, वो बहुत ज्यादा एक ऐसी सिचुएशन में होता जिसमें वो बिल्कुल डिब्लिटेटेड है, थ्रैश्ड है, राइट। तो जब एक मारक ग्रह भी मान लीजिए वो स्व राशि का बैठा हो, तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आप मंगल के उपाय कर लो तो वो ठीक हो जाएगा। सपोज ये मंगल राहु के साथ बैठा होता, इमेजिन करिए, तो वहां पर अब केतु के साथ बैठा है तो मैं इसका एक उपाय देकर जो है इसको ठीक कर सकता हूं, लेकिन अगर राहु के साथ बैठा होता या शनि के साथ बैठा होता तो मैं कहता कि ये जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, राइट। सो दिस इज हाउ वी सी कि देखो हम बिल्कुल किसी प्लेनेट को एकदम देख के नकार नहीं सकते, ये बिल्कुल खराब है, ये मारक है, ये खराब हो गया। मारक ग्रह भी कभी कभी अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य होते हैं। अब एकादश भाव में छठे भाव का स्वामी जाके अगर बैठ जाएगा तो आपको पता है कि आपने पिछले जन्म के अंदर बड़े कलेश किए हैं, समाज के साथ, सोसाइटी के साथ झगड़ा किया है। अब मंगल आपके 4th हाउस में आके बैठा है इस कुंडली में D1 के अंदर। वो क्या बताता है कि मंगल आपको टेस्ट कर रहा है, किसको टेस्ट कर रहा है, आपके हार्ट को टेस्ट कर रहा है। आपका चतुर्थ भाव आपका माइंड है, आपका हार्ट है। तो मैं इसको सबसे पहले क्या बोलूंगा, प्लीज कीप योर टेम्परामेंट इन कंट्रोल इन प्रोफेशन एज वेल एज इन द पर्सनल लाइफ, एंड डू नॉट फाइट अननेसेसरली विद द पीपल, लेट गो थिंग्स। चाहे मंगल मारक है नवमांश के अंदर, लेकिन मंगल बैठा तो अपने साइन का है ना, उसमें जान तो है ना, और उसकी मारकता को कम किया जा सकता है अगर टेम्परामेंट, लड़ाई झगड़े, मंगल से रिलेटेड जो काम है उसको कम किया जाए। आप समझ रहे हैं शशांक जी? Yeah. So Guruji, if Mangal is in Maran Karnastan in a D9 and in Lagna in a D1, तो उसका क्या हम बोलेंगे? सपोर्ट नहीं है पीछे से, मंगल की सपोर्ट नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो लगन में आके ग्रह बैठा है वो किन भावों का स्वामी है, वो आपकी कुंडली में क्या रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमने D9 में देखा तो D9 में वो मरण कांड स्थान में है, MKS में है। दैट मीन्स कि आपके प्रारब्ध के जो कर्म है मंगल से रिलेटेड वो अच्छे नहीं है। मंगल से रिलेटेड कर्म क्या है, टेम्परामेंट, ब्लड, हेल्थ, आपका जो मसल मास के अंदर जो ब्लड पंप होता है वो, आपकी सेक्सुअल ड्राइव, राइट, आपका लड़ाई झगड़ा, टेम्परामेंट, डिजायर्स। सो वो जो उसका जो एक्यूमुलेशन है वो इतना पॉजिटिव नहीं है फ्रॉम द पास्ट। सो आपको इन चीजों के लिए इस जन्म में बहुत केयरफुल रहना हो। दैट इज द मीनिंग। यस मोनिका जी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। गुरुजी मेरा क्वेश्चन है कि अगर प्लैनेट्स वर्गोत्तम है तो मतलब तो वो वाले केस में यानी कि जो हमारे संचित कर्मा से एज इट इज हम D1 में लेके आए, मतलब वही चीजें हमने ली हैं, मतलब पावरफुल, फिक्स्ड। मैं जब वर्गोत्तम की बात करता हूं तो फिक्स्ड की बात करता हूं, होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि वो एज इट इज ही आप प्रारब्ध से आगे लेकर आए हो, वो फिक्स्ड है, वो विष्णु जी की तरफ से है। यही तो मैं कह रहा हूं कि D9 में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो विष्णु जी की कृपा से हैं। और अगर D9 और D1 में प्लैनेट वर्गोत्तम है, ऑब्वियसली D1 से D9 में होता है ना कि D9 से D1 में। सो D1 से D9 में अगर एक प्लैनेट वर्गोत्तम हुआ है, एक पर्टिकुलर नवमांश में आया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। सबसे पहली बात तो ये।
और जो वो D1 में कर रहा है वो होके ही रहेगा। अच्छा है तो अच्छा है, अगर बुरा है तो बुरा है। तो फिर वो हमारे कर्मा बैलेंस हो जाएंगे। अगर वो कर्म कटता है तो डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बैलेंस द कर्म। मेरे 3 है वर्गोत्तम गुरुजी। फैंटास्टिक, यू आर हियर फॉर अ पर्पस, अ बिग पर्पस। ठीक है जी, नीरज जी। So if you have Pitru dosh in Navamsha, या but it's not there in Lagna Kundli. हाँ, तो इसका मतलब ये है कि वो जो पितृदोष है वो बहुत भीषण है। और वो बहुत भीषण है क्योंकि संचित कर्मों में आपने पितृदोष आपकी लाइफ में बहुत पिछले कर्मों का है। ठीक है, इस कर्म में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। जैसे ही मैं पितृदोष को D9 में देखता हूँ, मैं पितृदोष की जो है रेमेडीज दे देता हूँ। वो इसलिए देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जन्मों जन्मों से इनकी कुंडली में कहीं ना कहीं पे पितृदोष था जो अननेसेसरली डिले पैदा कर रहा है। अगर ये वाइस वर्सा सिचुएशन होती, D1 में पितृदोष होता और D9 में नहीं होता, तो वो इतना चिंता का कारण नहीं है। लेकिन अगर D9 में पितृदोष है और D1 में नहीं है तो वो सिवियर है। जो जनरल रेमेडीज होती हैं वही रेमेडीज करनी चाहिए। बर्ड्स को फीड करना, अमावस पूर्णिमा में ब्राह्मणों को दान देना और संक्रांति पे गरीबों को भोजन कराना। ओके, राइट सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू। जी श्रेया। सर प्रोफेशन के लिए D10 के भिन्न अष्टक वर्ग को देखना है ना। हमने अभी सिर्फ D9 को देखा। D9 हम डेस्टिनी, हम संचित कर्मों को देख रहे हैं। अभी D10 में हम कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने मैरिज और पर्सनल लाइफ की सीरीज चलाई वैसे प्रोफेशन की भी चलाऊंगा। अभी आप केवल D9 में देखिए। ठीक है गुरुजी, मेरा एक और क्वेश्चन था। हाँ जी मोनिका जी। अभी जैसे इन्होंने पितृदोष के लिए बात किया, तो मैं देख रही थी काफी अभी श्राद्ध पक्ष आने वाला है, तो काफी लोग बोलते हैं कि पितृदोष रिलेटेड पूजा करवा सकते हैं तो उससे वो चला जाता है, तो ऐसा है क्या? देखिए, पितृदोष में सबसे पहले तो श्राद्धों में अपने पितरीज को आप प्लीज करिए। पितरीज को प्लीज करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाना और बर्ड्स को फीड करना, कोई नई चीज ना लेना, उनके सामने दीपक जलाना, इन सब चीजों से जो है आपके जो पितरीज हैं वो जो है वो शांत होते हैं। पितृ पूजा तभी फायदा देती है जो ब्राह्मण आपको पितृ पूजा करवा रहा है वो ज्ञानी होना चाहिए। और कलयुग में एक ज्ञानी ब्राह्मण मिलना बहुत मुश्किल है। सो इसलिए आपको प्रैक्टिकल चीजें करनी होती हैं। जैसे आप रोज दीपक जलाएं, ठीक है, थोड़ा सा अन्न निकालें, ब्राह्मणों को दें, गरीबों को भोजन करवाएं। जो आपके पितरीज को खाना अच्छा लगता था, दादा परदादा जो चले गए, वो खाना बनाकर बच्चों को खिलाएं, क्योंकि आपके बच्चे ही आपका एंसेस्टर है। घर में बच्चों को वो खाना खिलाएं जो दादा दादी बहुत शौक से खाते थे या जो परदादा खाता था, बिकॉज वही दादे परदादे ही तो आपके बच्चे बने। आपके घर में अगर आप अडॉप्टेड चाइल्ड भी आता है, आप घर पे एक पेट भी लेकर आते हैं, ठीक है, उसका ध्यान रखें। बर्ड्स को फीड करें, क्योंकि बर्ड्स आसमान की तरफ जाते हैं खाना खा के, राइट। पूर्णिमा अमावस पे पितृ जो है वो वेट करते हैं भोजन के लिए, और भोजन जब आप गरीबों को देते हैं या ब्राह्मणों को देते हैं तो वो पितृ पक्ष पे जाता है। इसीलिए पितृ पक्ष के अंदर ब्राह्मणों को घर में बुला के भोजन करवाया जाता है। जी प्रवीण जी। गुरुजी, ये भिन्न अष्टक वर्ग भी देखना होगा D9 चार्ट का ना? हाँ जी, हाँ जी जी, ठीक, थैंक यू। ठीक है। सो आज आपको कुछ डीप इंसाइट्स मिले हैं D9 के? डिड यू गेट D9 में दृष्टियां भी देखते हैं गुरुजी D9 में? देखिए, ऐसा है, दृष्टि हम बिल्कुल देखते हैं, Okay. लेकिन ये दृष्टि जो है वो इम्पैक्ट करती है आपके प्रारब्ध को, आपके संचित को, मतलब पिछले। तो दृष्टि की जो रेलेवेंस है वो D1 में ज्यादा है। ऑल्दो D9 में हम देखते हैं, दृष्टि देखते हैं, लेकिन वो आपकी दृष्टि जो है आपके संचित कर्मों को रिप्रेजेंट कर रही है। उसका एनालिसिस है जी, थैंक यू। ठीक है, चलो।